Hello everyone, welcome to Bharti IAS, day 24 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. With reference to mangroves, consider the following statements. Endangered species like Ganges river dolphin are found in Sundarbans mangrove forest. Mangrove Initiative for Shoreline Habitat and Tangible Incomes was announced in the Union Budget 2023-24. Globally, they are estimated to sequester nearly half of the annual carbon dioxide emission from fossil fuel land use and industry. How many of the statements given above are correct? And the answer is D. That is, all of the statements given above are correct. Statement 1 is correct क्योंकि Sundarbans they are the world largest mangrove forest and they are home to endangered species like Bengal tiger and Ganges river dolphin. इंडिया के मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली जो सबसे ज़्यादा सुंदरबंस में पाए जाते हैं दे हैव वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज moreover various marine organisms and commercially important fish species are also found in the mangrove forest. The mangrove initiative for shoreline habitat and tangible income which is also known as MISTI ये अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2023 में एंड इसका एम था टू प्रमोट एंड कंजर्व द मैंग्रोव्स एज अ नेचुरल एंड यूनिक इकोसिस्टम क्योंकि mangroves they have very high biological productivity and they are also known to have very high carbon sequestration potential and they also work as bioshield. Bioshield का मतलब क्या है? Wherever the mangroves are located on the shoreline of country such as in the Sundarbans, in the state of Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, wherever they are located, तो मैंग्रोव क्या हैं ये एक बायोशील्ड की तरह काम करते हैं टू वेरियस कैलेमिटीज सच एज साइक्लोन्स सुनामीज तो इनके अगेंस्ट इनका जो इफेक्ट होता है वो मैंग्रोव्स कंटेन कर लेते हैं एंड जो कोस्टल एरिया है जहाँ पे मैंग्रोव्स लोकेटेड है वहाँ के इनर एरियाज में सुनामी साइक्लोन्स का इफेक्ट जो है वो कम देखने को मिलता है फिर so MISTI initiative, it was launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2023 on the World Environment Day, which is observed on the June 5th. तो इस प्रोग्राम में मैंग्रोव्स की रेस्टोरेशन एंड रिफोरेस्टेशन का काम किया जा रहा है and it aims to cover approximately 540 square kilometer which is spread across 9 states and 3 union territories of India for the period of 5 years which will commence from 2023. Statement 3 is also correct क्योंकि globally it is estimated कि जो mangroves हैं they sequester about 22.86 metric gigaton of carbon dioxide and this much carbon dioxide it is the half of the carbon dioxide emission which is emitted from the use of fossil fuel land use and industry. So mangroves are known to sequester half of the carbon dioxide emission which is emitted by various anthropogenic activities. बेसिकली मैंग्रोव इकोसिस्टम क्या करते हैं ये एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एंड अपने बायोमास में और सेडिमेंट्स जो होते हैं उनमें स्टोर कर लेते हैं एंड जब तक वो जो मैंग्रोव का एरिया है मैंग्रोव प्लांटेशन है फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तब तक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर हुई है ये वहां पे स्टोर ही रहेगी इस इफेक्ट की वजह से ये भी कहा जाता है कि अगर जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका 1% भी लॉस हुआ तो इसकी वजह से जो सिक्विस्टर किए गए हैं वहां पे ग्रीन हाउस गैसेज मैंग्रोव्स के द्वारा वो दोबारा से रिटर्न हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट and the act of loss of 1% of global mangrove forest it will be equivalent to burning of 500 million barrels of oil. Additionally, India's State of Forest report it mentioned that mangrove forest cover has increased in India by 930 square kilometer since 1987. 14 coastal states and union territories जो कि इंडिया में पाई जाती हैं उनमें से 3 जिसमें है गुजरात महाराष्ट्र एंड ओडिशा दे हैव रिपोर्टेड अ नेट इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंग्रोव जो हैं दे एक्ट एज अ बायोशील्ड so they also provide annual flood protection benefit. Moreover, mangroves they are the source of providing livelihood to various fishing communities household. तो इसमें क्या है कि मैंग्रोव्स में आर्टिशनल फिशरीज की जाती हैं विच आर अ वेरी गुड सोर्स फॉर फूड एंड इनकम फॉर द लोकल पॉपुलेशन क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली कोस्टल रीजन में होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दे आर ऑल टाइम सबमर्ज्ड इन वाटर तो इसकी वजह से फिशरीज करना वहाँ पे इजिली पॉसिबल है मोर ओवर मैंग्रोव्स एक हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस फिशेज एंड वेरियस फिश स्पीशीज टू ग्रो वेरी इजिली सिंस 1996
ग्लोबली जो मैंग्रोव कवर है इट हैज डिक्लाइंड, एंड कितना डिक्लाइन हुआ है कि जो स्टेट ऑफ गोवा का साइज है उसको हम 3 टाइम उसका एरिया कर दें, उतना एरिया मैंग्रोव का डिक्लाइन हुआ है सिंस 1996, विच इज इक्विवेलेंट टू 11,700 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव का लॉस देखने को मिला है इट इज रिपोर्टेड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से देखने को मिलते हैं। मोर ओवर लैंड यूज चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि फार्मिंग के लिए, एक्वाकल्चर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लैंड है ह्यूमन यूज के लिए हम उसको ले आते हैं। मैंग्रोव्स एंड अदर फॉरेस्ट को हटा के इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 62% ऑफ लॉस ऑफ द मैंग्रोव्स। ऑल्सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग भी मैंग्रोव्स के जो फॉरेस्ट कवर में लॉस हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to biofertilizers, consider the following statements. They do not allow pathogens to flourish. They synthesize plant growth regulators such as heteroxins and gibberellins. They increase plant capacity to absorb nutrients and increase biomass. Which of the statements given above are correct? And the answer is D. That is, all of the statements given above are correct. There was an article in the Hindu which mentioned that biofertilizers, they are a green solution for agriculture and they are also helpful in climate mitigation efforts. स्टेटमेंट 2 एंड 3 दे आर करेक्ट, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली ये क्या होते हैं, दे आर लेटेंट और लिविंग सेल्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में बाय एसोसिएटिंग विद देम एंड हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ सीड इन द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। तो बेसिकली जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करके, फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन एंड फाइटो हॉर्मोन्स के रिलीज में हेल्प करके प्लांट को जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। मोर ओवर दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द प्लांट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, एंड बायो फर्टिलाइजर्स की हेल्प से प्लांट में जो बायोमास होता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि बायो फर्टिलाइजर्स ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल से बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि दे आर अ हेल्दी एंड ग्रीनर ऑप्शन फॉर द एग्रीकल्चर, एंड ये दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करने में भी हेल्प करेंगे, ताकि जो हमारी सॉइल की हेल्थ है, मोर ओवर जो सॉइल पोल्यूशन होता है केमिकल फर्टिलाइजर डालने से, वो रिड्यूस हो पाए। तो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर केमिकल फर्टिलाइजर में जो केमिकल नाइट्रोजन यूज होता है उसको बाय 25% बायो फर्टिलाइजर रिप्लेस कर दे, तो दे कैन हेल्प इन मेंटेनिंग स्टेबल नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द सॉइल। मोर ओवर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के अलावा बायो फर्टिलाइजर ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू सिक्रीट एंड सिंथेसाइज बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस, जिसमें क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ विटामिन जैसे कि थायमिन एंड रिबोफ्लेविन, nicotinic acid, pantothenic acid, moreover other plant growth regulators such as heteroxins and gibberellins। ये ऐसे कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं which are helpful in growth of the plant, moreover in increasing the nutrient digestion by the plant। therefore statement 2 and 3 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। लाइक स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं दे आर इको फ्रेंडली, कि जैसे हमने पढ़ा कि दे आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड उनके लिविंग स्ट्रेन से इनको नेचुरल फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। बायो फर्टिलाइजर कैसे इको फ्रेंडली होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन होता है, उस बायो फर्टिलाइजर उस पोल्यूशन को रेडिकेट करने में हेल्प करते हैं। मोर ओवर ये जो पैथोजन्स होते हैं, सॉइल पैथोजन, उनको उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते। तो इसलिए बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली जो फर्टिलाइजर से होने वाला पोल्यूशन है उसको कम करना है, तो बायो फर्टिलाइजर को आगे लाना पड़ेगा, एंड इसकी वजह से फिर क्लाइमेट मिटिगेशन में स्ट्रेटेजीज में भी हेल्प मिलेगी। मोरोवर बायो फर्टिलाइजर जो सॉइल का खुद का एक माइक्रोबायोटा होता है, जो सॉइल में खुद में एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको बायो फर्टिलाइजर्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मोरोवर उनके जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो जैसे बोला जा रहा है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है, तो उसकी प्रमोशन में भी बायो फर्टिलाइजर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑल्सो ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं दे आर हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द स्ट्रक्चर एंड एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर को यूज करने से जो पोर स्पीसीज है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड जो सॉइल में कन्पेक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, और वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है दे आल्सो गेट एनहांस्ड। बायो फर्टिलाइजर ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन
जो रूट्स के द्वारा की जाती है प्लांट्स की, उसमें हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल बायो फर्टिलाइजर दे हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फिजियोकेमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल. Additionally, the government of India it regulates various type of biofertilizer under the Fertilizer Control Order 1985. तो बेसिकली इस ऑर्डर के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करती है कि जो बायो फर्टिलाइजर है उनकी क्वालिटी है इट इज टॉप नॉच क्वालिटी. बट फिलहाल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ग्रांटिंग एनी असिस्टेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर. 11 तरीके के बायो फर्टिलाइजर दे आर कॉमनली यूज विच आर मेंशन्ड हियर. मैं कुछ के नाम आपको बता देती हूँ सच एज राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, माइक्रोजेरियल बायो फर्टिलाइजर्स. तो इन बायो फर्टिलाइजर में बैक्टीरिया बेस्ड फर्टिलाइजर भी होते हैं, फंगाई बेस्ड फर्टिलाइजर भी होते हैं. जैसे कि ये माइक्रोजियल बायो फर्टिलाइजर है, इट इज फंगाई बेस्ड फर्टिलाइजर. यहाँ पे बाकी सारे नाम दिए हुए हैं, आप एक बार इसको पोस्ट करके पढ़ लें. और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं और भी मेंशन कर दूं कि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं इनमें खुद में कोई इनके न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. बट ये क्या होते हैं, ये लाइव माइक्रोबियल प्रोडक्ट होते हैं. मतलब इनमें माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स हमारी सॉइल के लिए एसेंशियल है. सॉइल की जो गुणवत्ता है, सॉइल की जो क्वालिटी है, उसको एनहांस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर में डाले जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर मेड अवेलेबल टू द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. ऑल्सो अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि बायो फर्टिलाइजर का यूज इट इज कंपल्सरी अलोंग द यूरिया. बट क्या है कि बायो फर्टिलाइजर इट इज रिकमेंडेड अंडर द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. गवर्नमेंट ने अभी इसको कंपल्सरी नहीं किया है. बायो फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन है बेसिकली कैरेट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर इट इज इंक्रीजिंग एंड इट हैज रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 100%. Meanwhile, जो liquid based biofertilizer की production है, it is also increasing and it has registered a growth of around 673%. बट अभी भी जो बायो फर्टिलाइजर की डिमांड है इट इज वे लेस देन द केमिकल फर्टिलाइजर डिमांड. क्योंकि प्राइमरीली जो फार्मर्स में एक परसेप्शन बनी होती है कि केमिकल फर्टिलाइजर में हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है एज कम्पेयर टू बायो फर्टिलाइजर. तो ये फार्मर्स एक परसेप्शन है, क्योंकि जैसे बोला गया कि बायो फर्टिलाइजर में खुद के तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, उसमें बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो फार्मर्स को ये समझाना कि ये बायो फर्टिलाइजर काम कैसे करेगा, कैसे ये सिक्वेस्टर करेगा न्यूट्रिएंट्स को एयर में से एंड सॉइल में से, इट इज अ समवट डिफिकल्ट टास्क. सेकेंडली जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर द लाइव प्रोडक्ट्स. तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं एंड इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है इट इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट. तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ताकि इसकी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, फार्मर के डोर स्टेप पे इसको डिलीवर किया जाए. फर्दर एक ये भी चीज़ है कि जितना हमने अभी तक केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया है तो उसका तो जो इम्पैक्ट सॉइल पे हो चुका है वो उसमें रहेगा ही. और अगर बायो फर्टिलाइजर हम उसी सेम फील्ड पे यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है इट विल बी लिमिटेड. एंड ऐसे नहीं होगा कि हमने जैसे शिफ्ट किया तो एकदम से बम्पर क्रॉप देखने को मिलेगी. It will the productivity of crop will increase slowly. Next question. With reference to agroforestry in India, consider the following statements. As per the Forest Survey of India report, India's overall tree cover has decreased in 2021 over 2019. Greening India's Wasteland with Agroforestry GROW report is launched by the Ministry of Environment. Trees Outside of Forest of India initiative is a joint initiative of World Bank and India's Ministry of Environment. How many of the statements given above are correct? And the answer is D. That is, none of the statement given above is correct. Recent surveys में ये देखने को मिला कि 11% of the fully grown trees which were seen from the satellite in 2010 period, they are no longer visible when they were reviewed from the 2018 to 2022 period. तो बोला जा रहा है कि जो फुली ग्राउंड ट्रीज हैं, लार्ज ट्रीज हैं, उनके जो ट्री कवर में रिडक्शन आई है उसका एक मेन रीजन ये हो सकता है कि जो भी वो एरिया था which was occupied by the large trees, it was due to the conversion of the farmland to the paddy field. Statement 1 is not correct because the Forest Survey of India it conducts regular survey of tree cover. Tree cover में वो trees आते हैं which are both inside and outside the forest area. But the Forest Survey of India it only publishes data on the changes in the acreage of the tree cover. मतलब कितना एकड़ of tree cover पहले था और कितना एकड़ of tree cover अभी reduce या increase हुआ है, उस पे ही डाटा Forest Survey of India रिलीज करता है. कोई भी इंडिविजुअल ट्री कितने कटे या कितने इंडिविजुअल ट्री लगे हुए हैं उसका डाटा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नहीं प्रोवाइड करता.
तो लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इंडिया का ट्री कवर है वो बड़ा है, वो इंक्रीज हुआ है, वो बढ़ गया है इन 2021 एज कम्पेयर टू द 2019 पीरियड। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट क्योंकि रिसेंटली जो ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो रिपोर्ट थी, और इसका ये जो पोर्टल है इट वाज रिलीज्ड बाय प्रोफेसर रमेश चंद हु इज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो बेसिकली इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने ही रिलीज किया है। ये एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है ऑफ नीति आयोग to utilize various remote sensing and geographical information in order to get a view कि जो एग्रोफॉरेस्ट्री practices हैं वो कितनी सस्टेनेबल हैं थ्रू आउट द कंट्री। मोरओवर अभी ये बताया जा रहा है कि एग्रोफॉरेस्ट्री कवर्स अबाउट 8.65% ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया विच इज अबाउट 28.42 मिलियन हेक्टेयर। एग्रोफॉरेस्ट्री में बेसिकली किया क्या जाता है, एग्रोफॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है उसके साइमल्टेनियसली फॉरेस्ट या फिर ट्रीज को उगाया जाता है, और ट्रीज भी वही स्पीसीज उगाई जाती हैं विच आर कमर्शियली वायबल एंड which are helpful in creating alternative livelihood opportunities and increasing the income of the farmer। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो वेस्टलैंड है वी कैन प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री ऑन दोज वेस्टलैंड्स। तो ग्रो इनिशिएटिव के जरिए इंडिया अपनी वेरियस नेशनल कमिटमेंट्स को अचीव करने की भी कोशिश कर रहा है, जिसमें क्या है कि 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को हमें रिस्टोर करना है बाय 2030, वेयर एज एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है 2.5 to 3 बिलियन टन का ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट। क्योंकि जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया इनिशिएटिव है इट इज अ 5 year इनिशिएटिव and it is a joint initiative of US Agency for International Development and India Ministry of Environment, Forest and Climate Change. But in the question we were given that trees outside of forest initiative, it is a joint initiative of World Bank and India's Ministry of Environment. तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि it is a joint initiative of Ministry of Environment and US Agency for International Development। मोर ओवर जो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट है ये क्या चाहता है कि इसमें में बेसिकली इंडिया के 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ट्री कवर को इंक्रीज किया जाएगा। इसमें ये भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में बेसिकली क्या क्या रुकावटें आ रही हैं और इसको कैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री करके बढ़ा सकते हैं इन 7 स्टेट्स। एंड दीज 7 स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। एडिशनली डाइवर्सिटी फॉर रेस्टोरेशन, ये एक टूल डेवलप किया गया है ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके और ये डिसाइड किया जा सके कि कौन सी ऐसी अप्रोप्रिएट ट्री स्पीशीज हैं और कौन से ऐसे सीड सोर्सेज हैं जो कि ट्री बेस्ड रेस्टोरेशन में हेल्प करेंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन से ट्रीज उगाने हैं, उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, उनकी प्लानिंग में डाइवर्सिटी फॉर रेस्टोरेशन टूल हेल्प करेगा। Diversity for Restoration tool, it is originally designed for the tropical dry forest in the country of Colombia. India Forest and Wood Certification Scheme 2023, इसमें क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया जाएगा ताकि सस्टेनेबली उनको डेवलप किया जा सके। As per various surveys, 6.18% of India's land is highly suitable and 4.91% of India's land is moderately suitable for agroforestry. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ये तीन एक ऐसे लार्ज साइज स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स हैं which are suitable for agroforestry. Whereas Jammu and Kashmir, Manipur and Nagaland, they are the medium sized states which are ranked suitable for the agroforestry practices. फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में प्लांटेशन ऑन प्राइवेट लैंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट लैंड पे एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में बहुत ट्रेडिशनल और मॉडर्न लैंड यूज सिस्टम आते हैं जिसमें क्या होता है ट्रीज की मैनेजमेंट की जाती है अलॉन्ग विद द क्रॉप्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं उनको भी साथ में एंगेज कर सकते हैं। एंड इट इज प्रैक्टिस इन बोथ इरिगेटेड एज वेल एज रेन फेड एरियाज। बेसिकली तीन मेन टाइप ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम होते हैं जिसमें सबसे पहला है एग्री सिल्वीकल्चर। इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स और ट्रीज उगाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है होम गार्डन्स। दूसरा इसका टाइप सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम जिसमें क्या होता है फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को साथ में किया जाता है। तो अगर किसी भी एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में तीनों एलिमेंट्स को एंगेज करते हैं मतलब वहां पे ट्रीज भी हैं, एनिमल्स भी हैं और क्रॉप्स भी हैं, तो इस प्रैक्टिस को बोला जाएगा एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम। मतलब इसमें एग्रीकल्चर की क्रॉप भी उगा रहे हो
और वहीं पे पास्चरल लैंड पे एनिमल्स भी ग्रेज कर रहे हैं विच आर यूज्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री। मोर ओवर एग्रो फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए वहां पे आप एक छोटा सा फॉरेस्ट भी और ट्री कवर भी उगा रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस को बोला जाएगा, इस सिस्टम को बोला जाएगा एग्रो सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम। Next question. With reference to Forest Conservation Amendment Act 2023, consider the following statements. It recognizes land that has been declared as a forest under the Indian Forest Act 1927. It excludes land recorded as forest before October 25, 1980, but not notified as a forest. The Act does not apply to land which changed from the forest use to non-forest use after December 12, 1996. Which of the statements given above are correct? And the answer is A. That is statement number 1 and 2 are correct and statement number 3 is not correct. So Forest Conservation Amendment Act, it came into force on December 1, 2023. इसमें क्या है? It recognizes land which has been declared or notified as a forest in accordance with the provision of the Indian Forest Act 1927 or under any other law. मोर ओवर इसमें वो भी लैंड को रिकॉग्नाइज किया गया है डेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेस्ट अंडर एनी लॉ बट विच हैज बीन रिकॉर्डेड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट। एंड इसमें एक डेट भी दी गई है अक्टूबर 25, 1980 की। ऐसे लैंड्स जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं ऑन और आफ्टर अक्टूबर 25, 1980, दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेस्ट अंडर दिस एक्ट। बट फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसे दो कैटेगरीज ऑफ लैंड है विच आर एक्सक्लूडेड। बेसिकली ये कौन सा लैंड है? द लैंड विच आर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बिफोर अक्टूबर 25, 1980 बट विच आर नॉट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। मतलब वो रिकॉर्ड्स में तो एज अ फॉरेस्ट उनको लिखा गया है बट उनको नोटिफाई नहीं किया गया बाय द गवर्नमेंट एज अ फॉरेस्ट। मोर ओवर ऐसे लैंड पैचेस जिन्होंने अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर ली थी फ्रॉम फॉरेस्ट यूज टू नॉन फॉरेस्ट यूज बिफोर December 12, 1996, they are also not recognized as forest under the Forest Conservation Amendment Act 2023. Under this Amendment Act, जो भी zoos, safaris या ecotourism facilities हैं, they are allowed to operate within the forest, but with some restrictions. Other type of forest lands जिसके ऊपर कोई restrictions नहीं लगेंगी, these are such habitations which are made along the roads and railway lines up to 0.1 hectare of the forest land, and such type of land which are strategically important for the projects within the 100 kilometer of the international boundary. एंड ऐसे कुछ जो लैंड्स हैं विच आर यूज्ड एज अ पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। मोर ओवर ऐसे लैंड भी नहीं कवर किए जाएंगे विच आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अप टू द 10 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया। एडिशनली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का इसका मेन एम क्या था? टू प्रोवाइड एंड मैनेज टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट रिजर्व्स। इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट इट कैन नोटिफाई एनी फॉरेस्ट लैंड विच इज बेसिकली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ रिजर्व ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑल्सो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का लागू किया गया था इट एम्ड एट प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन। इसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी अगर कोई भी आपको फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए डाइवर्ट करना है। बेसिकली अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड है वहां पे पेड़ पौधे काट के वहां पे अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है, सपोज कोई रोड बनानी है या फिर डैम्स बनाने हैं, तो वहां उसके लिए आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉरेस्ट कवर बेसिकली ये होता क्या है? इट रेफर्स टू लैंड विच इज ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर इन साइज एंड जिसकी जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है इट इज ग्रेटर देन 10%। ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होता है कि मतलब कितना परसेंटेज ऑफ जो लैंड है इट इज कवर्ड बाय ट्री एंड ट्रीज का उस लैंड के ऊपर कितना ज्यादा घनत्व है। इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर जो है इट हैज इंक्रीज्ड by 38,251 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम 2001 to 2021। ये इंक्रीज मेनली देखने को मिला है ओपन फॉरेस्ट कवर में जिसमें ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है ऑफ 10 to 40%। 2001 से 2021 के पीरियड के बीच में फॉरेस्ट कवर जिसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी है अबव 40% ये डिक्लाइन हुआ है, बट जो ओपन फॉरेस्ट कवर है जिसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी है 10 to 40% ये इंक्रीज हुआ है। इस डेली यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी उसके टॉपिक उसने पूछे हैं उनको कवर करना, ताकि बीइंग एन एस्पायरेंट आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड भी सारी तैयारी हो जाए। और इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो रेलिवेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं
उनको हम इजीली प्रिपेयर कर लें और ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना पाए। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन मशरूम। तो मशरूम्स के ऊपर यूपीएससी ने 2023 में ही क्वेश्चन पूछा था। तो दैट इज व्हाई वी हैव फ्रेम दिस क्वेश्चन कि इसमें करंट का भी कवर हो जाए सारा और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए भी एक टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो जाए। Consider the following statements. Mushroom cannot evolve to thrive on living planets. Mushrooms cannot be cultivated at sub-zero temperature. Mushrooms cannot evolve to grow out of living amphibians. How many of the statements given above are correct? As per a 2023 study by the University of Copenhagen, जो bonnet mushrooms होते हैं जिनको Mycena fungi भी बोला जाता है, it can invade the root system of a healthy living plant एंड वहां पे जाके ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के उस प्लांट के साथ में उसके रूट सिस्टम में रह सकता है। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि मशरूम्स दे आर इवॉल्विंग फ्रॉम डिकम्पोजर ऑफ डेड प्लांट्स टू इन्वेडर्स ऑफ लिविंग प्लांट। बेसिकली अगर हम देखें तो मशरूम इट इज अ फंगाई, और फंगाई कहाँ पे होती है, जहाँ पे डेड मैटर पाया जाता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है और वहीं पे उगती है ये फंगाई। बट अभी ये चीज देखने को मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की रिसर्च में कि जो ये मशरूम्स हैं इवॉल्विंग एंड दे आर इन्वेडिंग वेरियस लिविंग प्लांट्स, जबकि पहले ये डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करके वहां पे उगते थे, बट अभी इनकी ग्रोथ लिविंग प्लांट्स में भी देखने को मिली है। स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो नॉट करेक्ट क्योंकि अभी रिसेंटली नाजिर अहमद दार हु इज अ फार्मर फ्रॉम गंगू एरिया ऑफ द साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मशरूम्स को सब जीरो टेम्परेचर में उगाया वहां पे कश्मीर में ड्यूरिंग द विंटर सीजन। पहले क्या कहा जाता था, ये बिलीव किया जाता था कि मशरूम तो सब जीरो टेम्परेचर में नहीं उग सकती क्योंकि जो इसका माइसेलियम होता है विच इज अ पार्ट ऑफ मशरूम्स बॉडी, इसको उगने के लिए बहुत वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। बट अभी क्या हो गया कि ये तो निगेट हो गया एंड वहां पे उन्होंने कश्मीर में ही पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इसको उगा के दिखा दिया। स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट क्योंकि अभी ये देखा गया कि वेस्टर्न घाट में एक फ्रॉग विच इज एन एम्फीबियन, उसको देखा गया कि उसमें से मशरूम इट वाज ग्रोइंग आउट ऑफ द साइड ऑफ द फ्रॉग। तो बेसिकली जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन ने ये ऑब्जर्व किया है कि मशरूम इट इज ग्रोइंग ऑन द लिविंग प्लांट। तो वेस्टर्न घाट में इट हैज बीन ऑब्जर्व कि मशरूम एक लिविंग बीइंग मतलब फ्रॉग विच इज एन एम्फीबियन उसमें से ग्रो कर रहा था। मैं आपको आगे इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ। देखिए ऐसा ये फ्रॉग था जो वेस्टर्न घाट में पाया गया। इसमें ये देखिए आपको ये आउटग्रोथ दिख रही है। तो ये साइंटिस्ट ने जब देखा तो इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बॉनेट मशरूम विच बेसिकली ग्रो ऑन डेड एंड रोटिंग वुड। रिसेंटली देखा गया कि ये जो मशरूम है ये लिविंग प्लांट के ऊपर भी ग्रो कर रहा है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग बींग्स के ऊपर भी ग्रो कर रहा है। एडिशनली इंडिया में जो बटन मशरूम होते हैं, जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे मशरूम मार्केट में देखने को मिलते हैं, दे अकाउंट फॉर अबाउट 85% ऑफ कंट्रीज एनुअल मशरूम प्रोडक्शन। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मशरूम का एंड इट इज ऑल्सो द फिफ्थ इन द टोटल मशरूम प्रोडक्शन। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बटन मशरूम उगाए जाते हैं दे आर ग्रोन सीजनली एंड दे आर ग्रोन इन एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड क्रॉपिंग हाउसेज। बटन मशरूम को चाहिए होता है 20 to 28 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ पीरियड, जिसको बोलते हैं उसका स्पॉनिंग पीरियड, एंड 12 to 18 डिग्री सेल्सियस फॉर इट्स रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पीरियड। इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80 to 90% चाहिए होती है एंड वेंटिलेशन की भी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वहां पे मशरूम ग्रो कर सकते हैं। सीजनली मशरूम को विंटर्स में भी उगाया जाता है इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड साल में 8 से 10 महीने इसको हिली रीजन्स में भी उगाया जाता है। इसकी जो मशरूम की कल्टीवेशन है इट इज प्रेवलेंट इन द टेम्परेट एरियाज ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। बट जैसे जैसे मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसको मशरूम को हम इंडिया के किसी भी पार्ट में उगा सकते हैं। बेसिकली ये मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मशरूम की इंडिया में दे आर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। As per the National Horticulture Board, Bihar is the leading producer of mushroom in India. सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र, देन थर्ड पे ओडिशा। Straw mushroom, they are very popular mushroom variety in Odisha. इन द स्टेट ऑफ बिहार गया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मशरूम उगाए जाते हैं। गया के मशरूमों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी प्रमोट किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर डिस्कशन। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू भारती IAS।